Ma'am, magnetic field is the area over where magnet can detect its force. Okay. And magnetic fields can never intersect each other because point where it intersects. See. We put a compass and compass over there. Compass has to show two directions, which is not possible in a compass. That is correct for the first part, beta, in which you have to tell that two magnetic lines never intersect each other. The second part is saying that magnetic field lines are closed curves. Why so and how so? अगर ऐसा होता है तो justify करो. Yes. Ma'am, because magnetic field lines outside, if the magnet travels from north to south, Very and good. inside it moves from south to north, and it is a closed curve. Very good. Well done. So the correct answer is that in any magnet, whether it is a temporary or a permanent magnet, if they are having north and south pole, outside north to south travel करेगी and inside वही same line किस फॉर्म में हो जाएगी? वही same line south to north travel करती है. तो magnetic field lines actually travels from north to south outside and south to north inside, thus form a closed curve. This is the answer. और इसमें कुछ भी मतलब difficult नहीं था. This is the only answer, that it travels from north to south and inside the magnet it travels from south to north and thus it forms a closed curve. आपको दिख रहा है closed curve बनाता है. आपको बस यही justify करना था, ये बताना था कि this is true. Clear? Yes, ma'am. Okay. मैम Yeah. मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है. My voice is not clear. अभी यस मैम. अभी आवाज आ रही है? यस मैम. Yes, ma'am. Okay, now I am having mic in my hand only. I'll do one more question, and then we will start the next topic. Try to do maximum number of questions that you found. अच्छा, एक क्वेश्चन आया है CBSE 2015 में. आई होप ये सब लोग अटेंड कर लोगे. For the current carrying solenoid as shown below, draw the magnetic field lines and give reason to explain that out of the 3 points A, B and C, at which point the field strength is maximum. Okay, and at which point it is minimum. रुको मैं डायग्राम बना देती हूँ and you have to tell the answer. Just wait for a minute. So the question that came, these are 3 marker question. ठीक है, ये जो 3 marks के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं वो पढ़ लो. There is a solenoid, एक solenoid बना हुआ है. आपको डायग्राम solenoid को already they are giving you a diagram in which डायरेक्शन ऑफ coils का डायरेक्शन आपको दिया हुआ है कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है. There are 3 points. One point is inside the solenoid A, one is this upward side, and there is a point C on the end, on the either end of the solenoid. So you have to do what? Question एक बार फिर से सुन लो बेटा. Just listen to the question once again. For the current carrying solenoid, you have to see the direction of current. Current कैसे follow flow कर रहा है. Number 1. Draw the magnetic field lines. आपको इसके लिए magnetic field lines draw करनी है and give reason to explain that out of the 3 points A, B and C, at which point the field strength is maximum and at which point it is minimum. किस point पे magnetic field maximum होगी और किस point पे
पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ बनेगा और मैग्नेटिक साउथ कहाँ बनेगा? The left side will be north and south. Right side will be south. एक बार फिर से सोचो, आपकी बुक में सॉल्यूशन नहीं मैम, डायग्राम है। टॉप पे नॉर्थ रहेगा, बॉटम पे साउथ रहेगा। This side you will get a north and this side you will get a south. ठीक है? यस मैम। अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करने आते हैं। आपको पता है बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही it will form outside north to south, inside south to north, outside north to south, inside south to north. मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ आ गया? आपको पता है कि मैम it will be in the middle of the maximum strength will be in the middle of the south wave. मिनिमम ना होगा। मिनिमम मैम है साउथ। डायरेक्शन समझ में आ रहा है? डायरेक्शन समझ में आ रहा है? यस मैम। एक बार और फिर से सोचो कि मैक्सिमम फील्ड कहाँ होनी चाहिए? कहाँ पे मैक्सिमम And at C, नो क्योंकि Mama C. नो मैम C भी होगी मैम, क्योंकि वहाँ पे क्लोजेस्ट है and जस्ट राइट डाउन। अच्छा एक बार पहले आंसर लिख लो, जस्ट राइट डाउन द आंसर एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? सबके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड, आपको डायग्राम बनाया है, इसमें आपको 1 मार्क मिल गया। 2 मार्क्स का आपको है इसका एक्सप्लेनेशन। सो यू हैव टू राइट दैट इन केस ऑफ एन आइडियल सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट ए, इनसाइड में यूनिफॉर्म होती है और मैक्सिमम फाउंड होती है, एंड इज मिनिमम और 0 एट पॉइंट बी। जितना ही आप मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएंगे, लाइंस उतना दूर दूर होंगी, तो आप मिनिमम कहाँ पे मान लोगे? बी पॉइंट पे। आपको पता है मैक्सिमम क्योंकि यूनिफॉर्म जहाँ पे सारी की सारी पैरेलल हो जाएंगी लाइंस, तो वहाँ पे इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है और मैक्सिमम है। वाइल moderate at C, you can say that this is because a magnetic field is strong where magnetic field lines are crowded and is weak. Okay, so magnetic field lines B के पास में दूर दूर होंगी, तो क्या होगा? वहाँ पे मिनिमम हो जाएगी। Again, at the point C, the density of the field lines is less than at the point A, but greater than that of point B. सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ए के पास होंगी और कोई पैरेलल और सेम स्ट्रेंथ की होंगी, तो ए पॉइंट में मैक्सिमम फील्ड। और सी पे क्या होगा? सी पे क्राउडेड होगी लेकिन अलग अलग स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर आप सपोज वेक्टर सम करते हो, किसी पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हो, तो वो ए के कंपैरिजन में कम होगा, और बी पे तो वैसे सबसे ही कम होगा क्योंकि बी जो पॉइंट है वो अपवर्ड में लाई कर रहा है, और यू नो दैट लार्जर कर्व्स आर फॉर्म इन द अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के लार्जेस्ट क्या बोलते हैं? लार्जर कर्व फॉर्म होते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, वहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस दूर दूर होती हैं एक दूसरे से, ठीक है? तो यू कैन राइट इट एज मैग्नेटिक फील्ड at B is less than magnetic field at C is less than magnetic field at A. So सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की आपको इनसाइड और सोलेनॉइड मिलेगी, उसके बाद नियर पोल्स, एंड आफ्टर दैट अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी। क्लियर? एंड दिस इज ऑफ 2 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 मार्क्स एंड 1 मार्क फॉर डायग्राम टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? Yes. yes मैम। कुछ को समझ आया? या पूरा so you know that there is a magnetic field due to a current carrying conductor, whether it is a straight conductor or a circular loop or a solenoid, कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट कैरी हो रहा होगा उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाती है। क्लियर? Now today we are going to talk about the force on a current carrying conductor in a magnetic field, that is the current carrying conductor which is placed in the magnetic field, or which is the magnetic field which is produced by it
also exerts a force on it. जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो एक फोर्स भी अप्लाई करती है उसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, पहले एक चीज समझ में आई आपको. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force, except when it is placed parallel to the magnetic field. अगर आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, you can go to the diagram also. So we are talking about a force that is experienced by a current carrying conductor, that is experienced by a current carrying conductor in a magnetic field. ये चीज समझ में आ रहा है बेटा? अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, एंड दिस फोर्स इज नेग्लिजिबल या दिस फोर्स इज नॉट जीरो only when the current carrying conductor is placed parallel to the magnetic field. अगर मैग्नेटिक फील्ड के आपने पैरेलल में इस कंडक्टर को रख दिया है तब तो उसे उस पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा. दैट फोर्स विल बी जीरो, अदरवाइज इट विल हैव सम फोर्स ऑन इट. आप जब क्लास 11th में जाएंगे तो आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. दैट मैग्नेटिक फोर्स और टॉर्क, सब कुछ चीज़ें आप बहुत मैग्नेटिक टॉर्क वगैरह होता है, ये सब आप पढ़ेंगे कैसे पूरा 180 डिग्री ये इसको चेंज कर देता है, डायरेक्शन ही चेंज कर देता है कंडक्टर का. whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field. Now हमारे कोर्स में ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बस बहुत थोड़ा सा ही है. So you have to just understand a little bit of it. The force acting on a current carrying conductor in a magnetic field is due to interaction between magnetic field produced by the current carrying conductor and external magnetic field in which the conductor is placed. ठीक है, थोड़ा समझ में आया? मैंने लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए. Exactly. Actually, Maxwell's right hand thumb rule was for to determine the direction. Right hand thumb rule to determine the direction of magnetic field. और Fleming's right hand thumb rule आपको ये देखना है, ये किसलिए होता है? Sorry, Fleming's left hand rule. मैम, Yeah. मैम एक्चुअल राइट रूल तो बस यूजफुल इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास वो करंट का डायरेक्शन हो तब यूज एग्जैक्टली, तभी हम वो यूज भी कर पाएंगे. आपको ये भी पढ़ के रखना है, ये पेज नंबर 231 में दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एक रूल जरूर आता है, इतना याद रखना. मैक्सवेल आपने पहले पढ़ा था, मैक्सवेल राइट हैंड सबसे पहले आप पढ़ते हो तो वो होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए, बल्कि और फ्लेमिंग मतलब एफ मतलब फोर्स. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्लियर? फोर्स किस डायरेक्शन में होगा अगर आपको याद हो, ऐसे याद कर लो. एक तरीका बता रहे हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जो है वो एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए है कि वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन. और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है मैग्नेटिक वो फोर्स के ऊपर कि आपके फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा. व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, यू नो द डायरेक्शन ऑफ करंट, यू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है तो आपको पता करना होता है कि फोर्स किस तरफ लगेगा उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे. तो फॉर दैट यूज वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इसका यूज हम तभी पढ़ पाएंगे पहले हम जब फोर्स को समझ पाएंगे. सो फर्स्ट योर वर्क इज टू स्टडी दीज 2 पेजेस थॉरोली. जितना अच्छे से आप पढ़ पाओगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो अगर एक गुड फ्रेम ऑफ वर्क ऑफ माइंड्स अगर आप आओगे नेक्स्ट क्लास में तो आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. आई गेस एंड आई वांट टू गिव यू अ यूट्यूब लिंक फॉर दैट. अगर एक बार आप एक्सपेरिमेंटल वे में इसको देख लोगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा. क्लियर? तभी हम इस टॉपिक को उठाते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. आई गेस. अच्छा ये बताओ, पेज नंबर 230 तक जितने इंडेक्स क्वेश्चन है वो सारे आपने कॉपी में कर लिए हैं? क्योंकि अब मुझे फिजिक्स की कॉपी वर्क चाहिए सब बच्चों का. जितने बच्चों ने अभी तक का सारा काम किया है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी,
light and magnetic field, chapter number 13. Chapter number 13 with proper notes as well as all the index question. I think you have written in your copy up to page number 229 में जितने index question दिए वहाँ तक. कोई दिक्कत तो नहीं है वहाँ पर? हाँ बेटा. I hope. चलो अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तभी इस टॉपिक को भी बढ़ाएं आगे. MCQs are here. MCQ में का क्वेश्चन आए हैं. Just listen to the question. Question है which of the following is the properties of magnetic field lines? आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स. नंबर 1. नंबर 2, आप लोग देख लेना तो विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व. इज इट ट्रू और फॉल्स? हेलो, am I audible? आवाज आ रही है? Hello. Yeah, my voice is clear. Hello. आवाज आ रही है बेटा? Hello. क्लास मेरी आवाज आ रही है आप तक? Yes. Okay, I hope my voice is not coming to you. So I hope you get my message. Further, you have to complete So complete your work. I hope it might clear to you. See, the mic is open but I think my voice is not coming to you. The class is complete your work, the work which is given to you, and I meet you all in WhatsApp class.